Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are good. So, बच्चे, today we are going to start a new chapter of your syllabus, that is the tree lover. Okay, in this chapter, we are going to learn about how Rusky and his grandfather are fond of trees. Okay, so let's start from the first page. First of all, come to the warm up part. Write four things that you do to take care of plants and trees. Okay, but this is for yourself. You have to do it by yourself. This is here you have to write four things that you do to take care of the plants and the tree. Okay, whatever you do, write it here. Okay, now come to the reading part. In the first paragraph of this chapter on page number 30, I was never able to get over the feeling that plants and trees loved grandfather with as much tenderness as he loved them. I was sitting beside him on the veranda step one morning when I noticed the tendril of a creeping vine that was trailing near my feet. As we sat there in the front sunshine of a North Indian winter, I saw that the tendril was moving very slowly away from me toward grandfather. 20 minutes later, it had crossed the veranda steps and was touching grandfather's feet. बच्चे, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा इसमें ये बताया है कि जो हमारा नरेटर है, यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि मैं कभी भी इस फीलिंग को नहीं समझ पाऊंगा जो फीलिंग्स मेरे ग्रैंडफ़ादर की प्लांट्स के लिए और ट्रीज़ के लिए थी, या फिर उनकी ट्रीज़ और प्लांट्स की जो मेरे ग्रैंडफ़ादर्स के लिए थी। वो कैसे एक दूसरे से क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे। उसने एक इंसिडेंट जो हुआ उसको उसने यहाँ पर क्या किया है, एक हमारे सामने एक्सप्रेस किया है कि एक बार वो वरांडा की स्टेप्स में बैठा हुआ था और उसने देखा कि एक वाइन जो है वो क्रीप करते हुए वो सीधा उनके पैरों में आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकती है। वो सीधा कहाँ जाके ग्रैंडफ़ादर के फ़ीट को टच करती है। जैसे हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए फ़ीट को टच करते हैं अपने से बड़ों की, ऐसे ही वो जो बेल थी, वो जो है वो टच कर रही थी ग्रैंडफ़ादर के फ़ीट को, जो कि ये शो करता है कि वहाँ की वो जो प्लांट्स थे वो भी ग्रैंडफ़ादर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जितना कि उसके ग्रैंडफ़ादर प्लांट से प्यार करते थे। There is probably a scientific explanation for the plant's behavior, something to do with light and warmth, but I like to think that it moved that way simply because it was fond of grandfather. One felt like drawing close to him. Sometimes when I sat alone beneath a tree, I would feel a little lonely or lost. But as soon as grandfather joined me, the garden would become a happy place and the tree itself more friendly. नरेटर कहता है कि शायद इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कभी भी नहीं होगी कि जो प्लांट के जो बिहेवियर होता है, जो प्लांट्स का जो बिहेवियर होता है वो कैसे बदलता है लाइट के साथ और गर्मी के साथ। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो मेरी सोच है वो ये कहती है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं वो सभी क्या हैं, वो सब ग्रैंडफादर को बहुत चाहते थे। ठीक है, दे वॉज फॉर्म्ड ऑफ ग्रैंडफादर। नरेटर को ये लगता था कि वो सब खींचे चले आते थे ग्रैंडफादर की तरफ, और जब वो कहता है कि जब कभी मैं अकेला भी ट्रीज में बैठा होता था तो मुझे बहुत लोनली फील होता था, बट जब कभी ग्रैंडफादर मेरे पास बैठे होते थे तो वो वही प्लेस जो कि मेरे लिए लोनली थी, अब वो हमारे लिए एक हैप्पी प्लेस बन जाती थी, क्योंकि ट्रीज जो थे वो अब ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते थे हमारे साथ। ओके, Grandfather had served many years in Indian Forest Service, and it was so natural that he should know, understand, and like trees. On his retirement from the service, he had built a bungalow on the outskirts of Dehra, planting trees all around it: limes, mango, oranges, and guavas, also eucalyptus, jacaranda, and the Persian lilac. In the fertile Doon Valley, plants and trees grew tall and strong. नरेटर कहता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर
जो थे वो उनको बहुत प्यार था ट्रीज़ के साथ, और ये वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के जो साल थे वो लगा दिए थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, मतलब वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जॉब करते थे। और वो बहुत नेचुरल था कि वो पेड़ों को बहुत अच्छे से समझते थे। और उनकी रिटायरमेंट पे, जो सर्विस से उनकी रिटायरमेंट होनी थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक बेंगलो जो था वो देहरा की साइड में उन्होंने बनाया था। और वहाँ पे चारों ओर उन्होंने क्या किए थे, ट्रीज़ को प्लांट किया था। और वो कौन कौन से ट्रीज़ थे, जैसे मैंगो ट्रीज़, लाइम ट्रीज़, जेकार्डा ट्रीज़, ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एट्सेट्रा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ थे जो कि उन्होंने क्या किए थे, वहाँ पर लगाए थे। ठीक है बच्चा। और ये जो वैली है, जहाँ पर ये जो डून वैली है, ये कहाँ पे बच्चा, देहरादून में। तो उसके जो साइड में जो ट्रीज़ और जो वहाँ पर जो ग्रो होते थे प्लांट्स, वो बहुत बड़े बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो होते थे, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का क्लाइमेट वो ऐसा ही है। ओके। Grandfather was about 60, a lean, active man who still rode his bicycle at a great speed. He had stopped climbing trees a year previously when he had got to the top of the jackfruit tree and had been unable to come down again. We had to fetch a ladder for him. Okay. नरेटर कहता है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, वो अराउंड उनकी एज जो 60 के अराउंड थी, वो बहुत पतले से और बिल्कुल पतले इंसान थे, जो कि अपना बाइसिकल चलाते थे और काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे चलाते थे। और वो क्या करते थे, वो पेड़ों पर चढ़ जाते थे, उनको पेड़ों पर चढ़ना पसंद था। और एक बार तो ऐसा हो गया कि वो पेड़ के टॉप पर पहुँच गए, जैक फ्रूट के टॉप पर पहुँच गए। और फिर क्या हुआ कि उनको नीचे लाने के लिए हमें एक लैडर लगानी पड़ी, सीढ़ी लगानी पड़ी, जिसकी हेल्प से वो नीचे वापस आए। ओके। Grandfather was not content with planting trees in just our garden. During the rains, we would walk into the jungle beyond the riverbed, armed with cuttings and saplings, and these we would plant in the forest beside the tall sal and shisham tree. नरेटर कहता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो सिर्फ अपने ही गार्डन में नहीं प्लांट करते थे, वो बड़े बड़े जंगलों में भी प्लांट करते थे, जो कि रिवर बेड्स जो रिवर की साइड्स पर होते थे। और वो क्या करते थे कि वो पूरे जो है वो जो सामान चाहिए होता है पेड़ों को लगाने के लिए, वो उन सब के साथ में रेडी होकर के छोटी छोटी सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे लेकर के निकल जाते थे उनको लगाने के लिए। और वो कहाँ लगाते थे इनको, वो लगाते थे इनको जंगल में लगाते थे। ओके। और फिर जैसे कि बड़े बड़े पेड़, जैसे कि साल के पेड़, जैसे कि शीशम के पेड़, ऐसे पेड़ जो है वो वहाँ पर ग्रो होते थे, वो वहाँ पर फिर पैदा हो जाते थे। But no one ever come here, I protested. The first time we did this, who is going to see them? रस्टी कहता है कि जो हमारा नरेटर है यहाँ पर, वो कहता है कि मैंने प्रोटेस्ट किया कि अगर यहाँ पे हम पेड़ लगा रहे हैं तो यहाँ पे तो कोई नहीं आने वाला है, तो हम ये सब जो है वो क्यों कर रहे हैं। ओके। वी आर नॉट प्लांटिंग फॉर people only, said grandfather. We are planting for the forest and for the birds and animals that lived here and need more food and shelter. He told me how men and not only birds and animals needed trees for keeping the desert away, for attracting rain, for preventing the banks of rivers from being washed away, and for wild plants and grasses to grow beneath. ग्रैंडफादर ने कहा कि हम लोग ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं प्लांट कर रहे हैं, हम ये जो सब प्लांट कर रहे हैं ये हम लोगों के लिए नहीं प्लांट कर रहे हैं, हम प्लांट कर रहे हैं इनको बर्ड्स के लिए, जो कि इन पेड़ों पर रहेंगे। ओके। हम प्लांट कर रहे हैं किसके लिए, हम प्लांट कर रहे हैं जो भी इन जंगलों के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, जो इन जंगलों के अंदर रहने वाले प्लांट सॉरी जो इन जंगलों के अंदर रहने वाले बर्ड्स हैं, ये हम उनके लिए प्लांट कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जो सब चीज़ें हैं ये हम उनके लिए प्लांट नहीं कर रहे हैं जो कि पीपल हैं, जो कि लोग हैं। एंड फॉर टिम्बर आई आस्क्ड पॉइंटिंग टू द साल एंड शीशम ट्री। और फिर मैंने पूछा कि हाँ, साल और शीशम के लिए, कि हाँ फिर हम लोग टिम्बर के लिए भी इसको प्लांट करते हैं। Yes, rusty and for timber, but men are cutting down the trees without replacing or planting them. For every tree that's felled, we must plant at least two. Otherwise, one day there will be no forest at all and the world will become great desert. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अगर हम लोग कुछ ट्रीज़ को कट करते हैं तो उसकी जगह पर हमें प्लांट्स को लगाना भी चाहिए, हमें और वहाँ पे ट्रीज़ जो है वो लगाने चाहिए, हमें प्लांटेशन और करनी चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा जो है सब प्लांट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे।
फिर एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया पर से सारे प्लांट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। दुनिया क्या बन जाएगी, एक डेजर्ट बन जाएगी, ओके। The thought of a world would without trees become a sort of nightmare for me. It's one reason why I shall never want to live on the treeless moon. And I helped grandfather in his tree planting with even greater enthusiasm. He taught me a poem by George Morris, and we would recite it together when we were planting trees. तो रस्टी कहता है कि एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में मुझे सोचना भी मेरे लिए क्या था, एक बुरे ख्वाब जैसा था, वो दुनिया जिसमें ट्रीज़ नहीं होंगे। सोच के देखो कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ट्रीज़ नहीं होंगे तो उसमें हम लोग कैसे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये सोच कर ही मुझे क्या था, मुझे डर लगने लगा था। फिर मेरे जो है ग्रैंडफ़ादर ने उन्होंने मुझे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई जिससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा हो गया और ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करने में। और उन्होंने मुझे एक पोएम भी सुनाई जो जॉर्ज मॉरिस ने लिखी थी, और फिर हमने वो दो उस पोएम को इकट्ठे रिसाइट भी किया। ओके बच्चा, सो ये था हमारा चैप्टर द ट्री लवर। ओके, ये ट्री लवर एक्चुअली दिस इज एन अडेप्टेशन और वी कैन से दैट दिस इज एन अडेप्टेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड स्टोरी नेम्ड द ट्री लवर। ओके, इसके जो ऑथर है वो कौन है, रस्किन बॉन्ड। ओके, so this is all about our story. Thank you, have a nice day.